Let's see question number 6. The assignment that I gave yesterday, just see question number 6, right? Is it visible, students? Question number 6, right? A solid sphere of radius r, right? There was a solid sphere, correct? Whose radius was r, right? Solid sphere which are having radius r, right? Carries a charge plus q. इसमें कितना चार्ज दिया हुआ था? कैपिटल Q plus small q, right? Distributed uniformly over its volume, right? Distributed uniformly over its volume. A very small point like a piece of mass m gets detached from here. So out of the total body, a very small point like piece of mass m gets detached from the bottom of the sphere. Sphere की bottom से एक छोटा सा mass m detach हो जाता है, right? Yes or no? It acquires a speed of v when it fallen through a vertical height y as shown in figure, right? तो जब ये y distance cover करता है, this is the distance y, right? It acquires a speed v, right? यहाँ पहुंचने से वो एक speed v acquire करता है, right? Then assume the remaining portion to be spherical, right? वो पूछा है कि वो speed कितना होगा? What will be that speed, right? It is asking about that speed. Students, are you getting any idea? Here we'll take the principle of energy conservation, right? When it was attached, when the body was attached with, what was the force? Let this is point A, this is point B, right? So total energy at A should be equal to total energy at B. Total energy में क्या क्या आ सकता है? एक तो kinetic energy आ सकता है, right? और एक gravitational potential energy आ सकता है, और एक electrostatic potential energy आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर चार्ज को इंट्रोड्यूस करवा दिया, right? यही तो तीन टाइप ऑफ एनर्जी आने वाला है ना? Yes or no? So at point E we can write kinetic energy at A plus electrostatic potential energy at A plus gravitational potential energy at A, right or not? मैंने काइनेटिक एनर्जी को अज्यूम किया क्योंकि वो तो मूव कर रहा है कि नहीं. अगर यहाँ पर नहीं मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, राइट? और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं ए पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और क्यू प्लस क्यू चार्ज है वहां पर, राइट? यस और नो? सो टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, राइट, प्लस electrostatic potential energy at B, particle plus gravitational potential energy at B. Yes or no? We have to equate this one, correct or not? Just write down. Understood? We have to equate the three equations or three energy balancing. Yes or no? So student, at this point, what is the gravitational potential energy? Potential energy is mgh. Yes or no? Mgh. So for this, what is the potential energy? M, small mass m. Yes or no? Because the small mass is getting detached. M into G. And at what height it is from the ground? Y. Correct? This is the potential energy at A is at this point. Yes or no? For the small parts that is getting detached. Yes or no? Correct? Getting, na? And next, from this point, no gravitational potential energy because it is at the ground level, right? So gravitational potential energy at B is going to be zero. Correct? ठीक है नहीं? और यहाँ पर मतलब फॉल करने से पहले बॉडी रेस्ट में था ना? Before falling, the body was at rest, right? So its kinetic energy was zero. Kinetic energy was zero. So this kinetic energy is zero at this point, plus this potential energy is mgy, correct? Yes or no? But at B point, what is the kinetic energy? Half mv square. Yes or no? है कि नहीं? यहाँ पर fall कर रहा है ना, with certain velocity to strike the ground, and kinetic energy is half mv square, correct? And this is it what? Gravitational potential energy is zero. Yes or no? Now the thing is that electrostatic potential energy we have to find, right? What is electrostatic potential energy? कल मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, आपस में सेपरेशन R है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच? K Q1 Q2 by R. Yes or no? कल हमने किए थे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, करेक्ट है कि नहीं? तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालूं तो क्या है टोटल चार्ज? K Q plus Q by R, राइट है कि नहीं? क्योंकि इसका खुद का एनर्जी जो है जब यहां पर आ जाएगा तो देखो यहाँ पर Q plus Q था, जो मास हुआ उसका चार्ज उसने दिया रखा है Q, तो Q आ गया मतलब कितना हो गया फिर? Q कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस इज हाउ मच? R plus y, राइट? क्योंकि ये जो यहां से डिस्टेंस कितना है? R है
और ये डिस्टेंस y है. Getting or not? Understanding ना? Students, gravitational potential energy you have to find at this point. Yes or no? What is the charge here? Q. What is the charge here? Small q. So that means we can write K at a point. Capital Q, small q by what is the distance? R na? Yes or no? But at this point, what is the potential energy? K, capital Q, small q by R plus Y na? Yes or no? Because the distance between them is Y. Here the distance was R. Yes or no? Now you're seeing here half mv square. This part is 0, remove. This part remove. This is kq by r. Kq by r plus 1. So you take half mv square to one side and raise to other side, right? And solve for v, correct? Understood? Understood how to solve the question? Now you got the energy balancing equation all right. Then you take half mv square to this side, find the value of v, right? Just note it. Assignment question number 7, right? It is given 10 charges are placed on the circumference of a circle, right? मैंने 10 चार्ज को प्लेस किया on the circumference of a circle जिसका रेडियस r है, right? With a constant angular separation. Constant angular separation. 10 चार्ज को अगर मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री. तो मतलब यहां पर अगर एक चार्ज रखा तो यहां पर एक चार्ज रखा, राइट? यहां पर अगर एक चार्ज रखा तो यहां पर एक चार्ज रखा, तो इक्वली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? कितना हो गया? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? दैट मींस एवरीवन इज हैविंग ए एंगल 360 बाय 10 अगर मैं कर दूं तो 36 डिग्री गैप में मैंने हर एक चार्ज को प्लेस कर दिया एक सर्कल के ऊपर. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अल्टरनेट चार्जेस 1 3 5 7 हाफ चार्जेस प्लस q, राइट? यहां पर मैं दे दिया प्लस q, यहां पर मैंने दे दिया प्लस q, यहां पर मैंने दे दिया प्लस q, यहां पर मैंने दे दिया प्लस q, राइट? 1 3 5 7 9. अंडरस्टूड और नॉट? अल्टरनेट पॉइंट्स में मैंने प्लस q दे दिया एंड 2 4 6 8 हाफ चार्जेस माइनस q. यहां पर मैंने माइनस q चार्ज दे दिया, 2 4 पे दे दिया, 6 पे दे दिया माइनस q, और 8 पे दे दिया माइनस q, और 10 पे दे दिया माइनस q, राइट? यस और नो? टोटल 10 चार्ज है ना? 1 3 5 7 9 पे मैंने दे दिया क्या क्या? प्लस. फिर 2 4 6 8 10 पे कितना दे दिया? माइनस, राइट? तो देखो यहां पर इस प्लस क्यू के सामने एक माइनस क्यू मिल रहा है ना? इस प्लस क्यू के सामने एक माइनस क्यू मिल रहा है ना? हर प्लस क्यू के साथ एक माइनस क्यू जुड़ गया कि नहीं? टोटल 5 पेयर्स बन गए कि नहीं, राइट? और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहां पर? उसने पूछा है द पोटेंशियल V एट द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, राइट? जो भी है स्टूडेंट्स, पहले फोर्स की अगर बात करूं, ठीक है? देखो फोर्स क्या था? नॉर्मल फोर्स क्या था? K Q1 Q2 by R square, राइट? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? K Q by R square, राइट? फिर पोटेंशियल क्या था? तो सब में यहां पर क्या है कि फोर्स जो है वो नेट जीरो हो जा रहा है ना, क्योंकि इसकी वजह से जो होगा फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा. तो अगर मैं टोटल ऐड कर दूं, टोटल 5 प्लस क्यू चार्ज है और टोटल 5 माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी सर्कल के ऊपर? व्हाट इज द नेट चार्ज? इफ द नेट चार्ज इज जीरो, तो blindly you can say electric field is equal to zero, potential is equal to zero. If charge will not exist, then how the electric potential and electric field will come into being, right? Yes or no? Just write it. So the option will be V is equal to 0 and E is equal to 0, right? Question number 8C, students. Two identical point dipoles of dipole moments P1 I, मतलब along x पे एक है, P1 is equal to, देखो लिखा है P I क्या, मतलब पॉजिटिव x पे एक डाइपोल है, राइट? What is your paper? And P2 is minus Pi क्या, और एक है तो नेगेटिव x एक्सिस पे, held on the x axis at a distance a from each other. मतलब अगर मैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं स्टूडेंट्स, if I'll be representing that one diagrammatically, see here, अगर मैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, this is x axis, this is minus x, right? यहां पर एक डाइपोल रखा है मैंने. डाइपोल का मतलब आप समझते हो, two same charges separated by a particular distance, right? Two same charges of equal magnitude but opposite direction. मानो कि प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल समझते हो ना? प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्ज सेम है और मैंने एक सेपरेशन पे रखा है, दैट इज P is equal to Q into 2a, राइट? दिस इज नोन एज डाइपोल. यस और नो?
तो एक दे दिया है एक्स एक्सिस पे दो डाइपोल यहाँ पर रखा गया है और एक डाइपोल यहाँ पर रखा गया है, राइट। डाइपोल की जो दिया हुआ है पी, डाइपोल की एक डायरेक्शन होता है ना, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस, यू नो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यस और नो। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, राइट, यस और नो। गेटिंग स्टूडेंट्स? और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना दे दिया उसने, ए दे दिया, करेक्ट। अभी पूछा है व्हेन दे आर रिलीज्ड, जब मैंने दोनों डाइपोल को छोड़ दिया आपस में रिलीज कर दिया, ठीक है, along the direction of the dipole moments, along the direction of their dipole moments remain unchanged, उनका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन था वो रिमेन्स अनचेंज रहा। इफ मास ऑफ ईच डाइपोल इज m, यहाँ पर जो मास है इसका मास m है, इसका मास m है, राइट। देयर स्पीड व्हेन दे आर इनफाइनाइटली फार अपार्ट, राइट, व्हाट विल बी देयर स्पीड, जब मैंने उसको छोड़ दिया तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब वो चले गए, कहीं कहीं पे पहुंच गए, तो उनकी स्पीड कितना होगा, व्हाट इज इट स्पीड, व्हाट इज इट स्पीड, राइट, बिकॉज दिस इज आल्सो डाइपोल मोमेंट p, ये अलोंग नेगेटिव एक्सिस पे है, सॉरी पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो इसलिए p i कैप लिखा गया है, राइट। और एक जो देखो क्वेश्चन पे लिखा है p माइनस आई कैप लिखा है, राइट है ना, ऐसा लिखा है ना p माइनस आई कैप, और यहाँ पर एक लिखा है p प्लस आई कैप, ये सर नो, मतलब एक पॉजिटिव एक्सिस पे काम कर रहा है, एक दूसरा नेगेटिव एक्सिस पे काम कर रहा है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम एनर्जी बैलेंसिंग वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जा रहा है तो उसमें क्या एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, कुछ देर के बाद उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही बचेगा, ठीक है, और बाकी कौन सा एनर्जी उनको लेके जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज टेकिंग देम टू सर्टेन डिस्टेंस, यस और नो, क्योंकि उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो दोनों आपस में दूर जा रहे हैं, गेटिंग और नॉट। तो इसलिए जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा इनिशियल का, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकालूं, यू इनिशियल अगर दोनों डाइपोल के बीच में निकालूं, राइट, इट विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स, you can see 1/4 pi epsilon naught, right, 2p by r cube, just right. Initial potential energy between the two dipoles is equal to 1/4 pi epsilon naught, right, 2p square by r cube, क्योंकि दो चार्ज है ना यहाँ पर, ये p मतलब, ये p का मतलब क्या है, एक प्लस एक माइनस, राइट, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज ऐसा रखा गया है। इस p का मतलब क्या है, एक प्लस q चार्ज एक माइनस q चार्ज यहाँ पर रखा गया है, राइट। जब मैं इनको छोड़ दिया तो वो इन्फिनिटी की तरफ चले गए, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे दोनों डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, राइट, जैसे k q1 q2 by r square लिखते थे, इसी तरह डाइपोल में क्या लिखोगे, k p into p by r square, राइट, यस सर नो। तो ये डाइपोल का क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2p square by r cube, राइट, दिस इज इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू डाइपोल्स, गेटिंग। और अभी दे दिया कि वो इंफिनिटी डिस्टेंस पे चले गए, जब इंफिनिटी डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, r इंफिनिटी हो जाता है। If r is becoming infinity, students, yes or no? If r is becoming infinity, then the electrostatic potential energy is going to be how much? Zero, right? Because 1 by infinity is zero, na? So the final electrostatic potential energy between the two dipoles is going to be zero, right? So what is the change in electrostatic potential energy? Change in electrostatic potential energy is how much? This minus this, final zero minus this, yes or no? So that is equal to how much? 1/4 pi epsilon naught, right? Into 2p square by r cube. r cube मतलब यहां पर दोनों के बीच में गैप क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, a q लिखेंगे, करेक्ट, ये सर। अगर सेपरेशन r होता तो r क्यू, सेपरेशन a है तो क्या लिखेंगे, a q लिखेंगे, करेक्ट, ये सर नो। दैट इज गोइंग टू बी, दैट एनर्जी गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, दोनों का काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसका मास है ये कुछ स्पीड में जा रहा है, इसका भी मास है ये भी कुछ स्पीड में जा रहा है, करेक्ट। सो दोनों का काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करेंगे, है ना। So that is equal to how much, half mv square plus half mv square, all understood, getting or not? अब इसको सॉल्व करके भी निकालेंगे, करेक्ट, mv square plus mv square कितना हो गया, 1 mv square, half half plus 1 हो गया कि नहीं। So we can write here mv square is equal to how much, 1/4 pi epsilon naught 2p square by a cube, correct, yes or no? So if I'll be writing v square from here, see v square is equal to how much, see v square is equal to how much, m जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, राइट। सो यू कैन राइट 2p square divided by 4 pi epsilon naught m into a into q, राइट, है कि नहीं। जस्ट सी, अभी अगर हम v निकालेंगे तो v क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, राइट, v विल बी रूट ओवर, करेक्ट, यस सर नो। तो जब v निकालेंगे सर, राइट, v इज इक्वल टू हाउ मच,
स्टूडेंट सी V इज इक्वल टू हाउ मच, रूट ओवर ऑफ 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MAQ, राइट। अगर मैं कुछ चीजों को बाहर लाना चाहता हूं, p स्क्वायर है ना, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, राइट। लिख दिया मैंने p। अंदर में a क्यूब है, मैंने एक a को रख दिया, बाकी a स्क्वायर को जब बाहर लाऊंगा तो कितना आएगा, a आएगा। सो यू कैन राइट p बाई a रूट ओवर ऑफ, कितना लिख सकते हो, देखो यहां पर दैट इज 2 रहा ऊपर, डिवाइडेड बाय 4 को भी बाहर ला सकते हैं कि नहीं, 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, राइट। सो p बाई 2a इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट ma, यही हो जाएगा ना। ऑप्शन में किस तरह दिया हुआ है देखो, अच्छा देखो, इसको मत लो अंदर, इसको ये में रहने दो, तो वो जो अंदर में रहेगा 4, राइट, वो 4 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, है कि नहीं। तो ऑप्शन जो है कितना आ रहा है देखो, स्टूडेंट सी हियर प्रॉपर्ली, ऑप्शन जो वो कितना रखेंगे हम, p बाय a को रख दो, राइट, ऊपर में क्या लिख दो, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू a, यही है ना ऑप्शन पे, ये वाला है कि नहीं ऑप्शन पे, जस्ट टिक दैट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट चलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 सी ऑल, कंसीडर टू चार्ज मेटालिक स्फीयर्स S1 एंड S2। मैंने दो स्फीयर्स ले ली यहां पर, ठीक है, करेक्ट, स्फीयर 1 स्फीयर 2, करेक्ट, हैविंग रेडियस R1 एंड R2, इसका रेडियस कितना है R1, इसका रेडियस कितना है R2, करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड्स E2, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1 है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2 है, राइट, ऑन देयर सरफेसेस। वो ऐसे है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि सच दैट E1 by E2 is equal to R1 by R2, right? The ratio, then the ratio of electrostatic potential, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो V1 by V2 is going to be how much, correct? Yes or no? वही पूछा है क्वेश्चन पे, what is the electrostatic potential की रेशियो क्या उसने पूछा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ। स्फीयर 1 का रेडियस कितना है, कितना स्फीयर 1 का रेडियस R1, स्फीयर 2 का R2, स्फीयर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1, स्फीयर 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है उसने, करेक्ट। स्टूडेंट्स व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू kq by r स्क्वायर, राइट। तो अगर यहां पर चार्ज मैंने q1 दे दिया, यहां पर मैंने चार्ज q2 दे दिया, राइट, यस और नो। सो अगर मैं E1 लिखूं, E1 इज गोइंग टू बी हाउ मच सर, k q1 by r1 स्क्वायर, करेक्ट। E2 is going to be how much, क्या Q2 by, तो उसने दिया रखा है E1 by E2 is equal to R1 by R2, right? If I'll be finding E1 by E2, just see E1 by E2 is going to be how much, K Q1 R1 square, correct, divided by होगा तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो दैट इज R2 square by K Q2, is that clear or not? और यहाँ पर K कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट। तो Q1 Q2 को पोटेंशियल जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा ना स्टूडेंट्स, पोटेंशियल विल बी सेम और नॉट। और E1 by E2 किसके साथ बराबर दिया हुआ है, R1 by R2 के साथ बराबर दिया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो R1 by R2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में मैं ले आता हूँ Q1 by Q2 होल इनटू, यहाँ पर क्या लिखूंगा R2 स्क्वायर by R1 का स्क्वायर। कैन आई राइट दैट और नॉट, जैसे मी कैन आई राइट दैट और नॉट, अंडरस्टूड। उसने क्वेश्चन पे दी रखा है स्टूडेंट, यू सी हियर E1 by E2 इज इक्वल R1 by R2 दी रखा है, राइट, तो इसलिए मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, तो मुझे R1 by R2 इज इक्वल टू Q1 by Q2 R2 स्क्वायर by R1 स्क्वायर मिल गया कि नहीं, यस और नो। तो अगर मैं यहां से Q1 और Q2 का रेशियो निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, ये जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा R1 का Q, राइट, या कि इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा R2 का Q, गेटिंग और नॉट, ऑल गेटिंग ना। तो अभी मुझे Q1 by Q2 का मिल गया, बट मुझे निकालना क्या है एक्चुअल में, क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, पोटेंशियल पूछा गया है, V1 by V2 का रेशियो कितना होगा, राइट, एंड V1 यू नो KQ by R, पोटेंशियल इज K Q1 by R और नॉट,
Potential is K Q1 by R, right? Don't know. Potential I have told 3 times. Last class also I have told you. While I Km I told Coulomb's law is equal to K Q1 Q2 by R square. Electric field is equal to K Q1 by R square. Yes or no? And potential is equal to K Q1 by R. Getting or not? We want to find the potential. What's your name? Pratisa. Mona Lisa. Monisa. Okay. Why we're not reading? Today test was there. That's why I'm leaving. Yes or no? From next week onwards, I will not see any excuse. Right? Copies should be updated. So next we have to find what? Potential, right? See here, we have to find potential. All wrote this much. So if I'll be finding potential V1 by V2, students, V1 is equal to how much? K Q1 by R1, right? V2 is equal to how much? By R2, correct? So V1 by V2 means you just take the ratio K Q1 by R1 into R2 by K Q2, correct? Yes or no? K cancel. So by putting the values of right, Q1 by Q2 is equal to how much? R2 by R1. And you got Q1 by Q2, how much you got? R1Q by R2Q, correct? Into, क्या था वहां पर? R2 by R1. तो एक एक कैंसिल हो जाएगा ना? R2 था, R2Q था, तो R2 स्क्वायर हो जाएगा ना? और यहाँ पर R1Q था, R1 था, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा ना, right? So you can write here finally V1 by V2 is equal to how much? R1 square by R2 square, right? This is the answer to the given question, right? Student, let's see. Next question number 10, right? Yes or no? It is given two electric dipoles A, B with respective dipole moments minus 4qa I cap. Yes or no? And another one is minus 2qa I cap, right? Are placed on the x-axis with a separation r as shown in the figure. Correct? Okay. Question number 10, students. Let's see. There are two dipoles. I have placed one here, another placed here, right? This is A point, this is B point, correct? And the separation between them is r, right? The distance from A at which both of them produce the same potential, right? A से एक distance निकालो, right? We have to find the distance. Let the distances, students. Let the distances. Let at this point they are having same potential, right? Yes or no? And let the distance is small r, correct? Getting or not? So if this is small r, then this distance is going to be how much? Capital R minus small r. Is that clear to all? Students, यहाँ पर एक डाइपोल रखा गया है, जिस डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? -4qa कैप, राइट? दूसरा यहाँ पर जो डाइपोल है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है? -2qa कैप, करेक्ट? वो पूछ रहा है अगर दोनों का सेपरेशन r है तो मुझे A पॉइंट से एक ऐसा डिस्टेंस बताओ, मतलब मुझे हमें R निकालना होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ R. The distance from A at which both of the dipoles, इस डाइपोल का पोटेंशियल इस डाइपोल का पोटेंशियल सेम होगा, राइट? यस और नो? तो इस क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. मैंने एक डाइपोल रख दिया तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसका फॉर्मूला क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया? What is the formula for potential due to a dipole? You have learned now. Electric field due to a dipole, potential due to a dipole, right or not? What is that formula? Just remember. Due to a dipole. Yes. 1 by 4 pi epsilon naught. 2p r. Yes or no? By r square. Yes or no? So right, students. The potential at a point due to a dipole, right? The potential at a point due to a dipole, right? The potential at a point, the potential at a point due to a dipole at a distance r, right? A distance r, right, is given by dipole dot r divided by 4 pi epsilon naught into r square, right? This is the formula for dipole, students. See here,
This is P dot dr, right? P dot dr, that is A dot B. A dot B is AB cos theta ना? Yes or no? उसने इस एक्सिस के अलग दिया हुआ है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना? So we can write here PR only, right? Because P dot R मतलब PR cos 0 डिग्री. अगर वो एक पॉइंट यहाँ पर देता तो 90 ले लेते, राइट? एक कोई भी एंगल थीटा करके दिया होता तो PR cos 30 या फिर 60 लिखते, राइट? Getting or not? This is the formula for potential due to a dipole, right? और वो बोल रहा है कि इस डिस्टेंस पे डाइपोल सेम होगा, करेक्ट? तो इसके लिए इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे डाइपोल निकाल सकते हैं जो कि r डिस्टेंस पर है. इस डाइपोल के लिए इस डिस्टेंस पे भी निकाल सकते हैं, करेक्ट? एंड बोथ द पोटेंशियल विल बी सेम, राइट? गेटिंग और नॉट? बोथ द पोटेंशियल विल बी सेम, करेक्ट? सो लेट्स डू दैट. जस्ट राइट द पोटेंशियल. इसका पोटेंशियल क्या होगा? 4qa लिखा है ना, और कितनी दूरी पर है वो? r की दूरी पर, राइट? सो राइट 4qa by 4 pi epsilon naught into r square, right? Yes or no? Understood ना? फिर इसके लिए डाइपोल क्या हो जाएगा? कितना है मैग्नीट्यूड? 2qa, करेक्ट? डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught into ये डिस्टेंस कितना है? करेक्ट? अंडरस्टूड और नॉट? ऑल अंडरस्टूड ना? गिवन ना पोटेंशियल इज सेम. ये पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला है, हमने ले लिया यहां पर, राइट? करेक्ट और नॉट? अंडरस्टूड ना? सो यू कैन सी हियर 4 pi epsilon कैंसल, q कैंसल, a कैंसल. यस और नो? सो व्हाट यू गॉट हियर 4 इनटू, तो क्या होगा देखो, 4 बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 2 बाय. यस और नो? Getting or not? Let's just solve it. Just solve it, students. अगर मैंने इसका रूट ओवर हटा दिया, ठीक है, ये क्या कितना बन जाएगा? ये 2 बाय r इज इक्वल हाउ मच? सर इसको पहले कैंसिल कर दो, राइट? सो यहां पर लिख दो √2r बाय 1 बाय r माइनस r, करेक्ट? यस और नो? So small r is equal to how much? √2 whole into r minus r, correct? But we are interested in finding the distance from A point, right? We want to find small r. So find small r is going to be how much? Just find small r is going to be how much? Open the bracket here. That is equal to √2r minus √2 capital R, right? Take that on this side. That means I can write √2 capital small r minus r is equal to √2 कैपिटल आर. यस और नो? √2 आर को मैंने यहां पर रखा, राइट? इस आर को उस तरफ ले लिया तो माइनस कर दिया, ये माइनस था इस तरफ ले आया, √2 आर कर दिया, राइट? तो यहां से आप आर कॉमन ले सकते हो. फ्रॉम दिस आई एम राइटिंग हियर, टेकिंग आर कॉमन यू कैन राइट √2 minus 1, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? √2 कैपिटल आर, करेक्ट और नॉट? सो इफ आई विल बी फाइंडिंग आर, देन आर इज गोइंग टू बी हाउ मच? सी हियर, आफ्टर दिस आई एम राइटिंग हियर, so the small r is going to be how much? √2r divided by √2 whole minus 1. ऐसा ऑप्शन पे है क्या? Just see whether it is there in option or not. अच्छा, कहीं पे प्लस माइनस का गलत हुआ क्या? देखो, just see. √2r divided by √2 plus 1 है ना? तो कर सकते हैं, राइट? अंडरस्टूड ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 11 की कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं पहले में, थोड़ा और एक बार बता दे रहा हूं. चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट? लास्ट क्लास मैंने 2 बताया था, राइट? A, दूसरा एक है कितना रेडियस उसका? B, तीसरा एक है तीनों का सेंटर एक जगह पर है, C. अंडरस्टूड? ऐसा दिया हुआ है. सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल. सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल. मान के चलो मैंने इसको Q1 चार्ज दिया, इसको Q2 चार्ज दिया, इसको Q3 चार्ज दिया, राइट? उसका मतलब यह है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. कल मैंने इस तरह के क्वेश्चंस किया था, लिखा था Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिखा था, करेक्ट?
और तीनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम बता रहा है, मतलब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, करेक्ट? यस और नो? तो सिग्मा 1 मतलब टोटल चार्ज बाय एरिया 4 पाई a स्क्वायर, यस और नो, इज इक्वल टू सिग्मा 2 मींस q2 चार्ज बाय 4 पाई b स्क्वायर, करेक्ट? प्लस सिग्मा 3 मींस हाउ मच? 4 पाई c स्क्वायर, करेक्ट? यस और नो? तो 4 पाई हर जगह से कैंसिल करके मुझे क्या मिल गया? q1 by a स्क्वायर इज इक्वल टू q2 by b स्क्वायर इज इक्वल टू q3 by c स्क्वायर। ये मुझे कल मैंने मिला था ना, हमें q1 by r1 स्क्वायर इज इक्वल टू q2 by r2 स्क्वायर, कल मिला था कि नहीं? उसको इक्वेट करके हम निकाले थे, अंडरस्टूड और नॉट? तो उसने पूछा है the total potential at a point at the distance r from their common center where r is less than, मतलब इस पॉइंट पे वो पूछा है, any distance r पे वो पूछा है, राइट? पूछा है the total potential at a point r from their common center, राइट? तो एक्चुअली क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है? कैपिटल Q दिया हुआ है, करेक्ट? तो लास्ट क्वेश्चन में आप देखना, लास्ट क्लास में हमने जैसे किए थे ठीक इसी तरह आपको Q1 निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, राइट? ठीक इस तरह आपको Q2 निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, राइट? ठीक उसी तरह आपको Q3 निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, अंडरस्टूड? यस और नो? फिर आपको पोटेंशियल ऐड कर देना है, करेक्ट है कि नहीं? सो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू हाउ मच? K Q1 by A प्लस K Q2 by A B प्लस K Q3 by C, यस और नो? और Q1 Q2 Q3 आप यहां से मिलेगा, उसको रिप्लेस कर देना, फिर कंबाइन कर देना, आंसर आ जाएगा, राइट?